تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جنت کو اعمال کا بدلہ بنایا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اپنے رب کی یقین کے ساتھ عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے اور ان سے محبت کرنے والوں پر بھی اللہ رحمتیں برسائے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ذات ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اس عید میں اور ہر عید میں خوشیوں، مسرتوں، محبتوں اور الفتوں کی تجدید ہوتی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا محور الفت و محبت ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی ہر چیز کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے اس کا ذکر بلند ہوا اور اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، حالانکہ اس سے پہلے یہاں نفرت انگیز جھگڑوں، تباہ کن جنگوں اور گناہوں کو مول لینے والی عداوتوں کا شور و غوغا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی اصل جڑ کا خاتمہ کیا، حقد و حسد کی چنگاریوں کو بجھایا، تو پھر سب نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بلا جبر و اکراہ خوشی خوشی اپنے اسلحے پابندے نیام کر لیے۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کی سماعتوں سے ٹکرانے والی تر و تازہ اور شگفتہ قرآنی آیات کی تلاوت نے ان کی زندگیوں کو جلا بخش دی تھی۔ سیرت نبوی نے ان کے چال چلن اور کردار کو شائستہ اور مہذب بنا دیا تھا، چنانچہ ان میں ایسی یک دلی اور یگانگت پیدا ہو گئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ بغض و عناد اور مار دھاڑ کی جگہ محبت و مودت اور افتراق و انتشار کی جگہ اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی ہے۔ قرآن نے ان کی صاف شفاف اور خالص الفت و محبت کو یوں بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ الفت و محبت جس کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز مظاہر ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہی آگے چل کر امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تقویت و مضبوطی کے لیے اساس قرار پاتی ہے۔ دور حاضر کو دیکھیے اور کئی دہائیاں پہلے جزیرہ عرب کی حالت کو یاد کیجیے، جب یہاں افتراق و انتشار کی فضا قائم تھی، ہر طرف لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کا دور دورہ تھا، پراگندہ بستیاں تھی، فقر و فاقہ اور بھوک نے جن کے جسموں کو لاغر اور کمزور کر دیا تھا، جن کے کردار اور چال چلن میں جہالت تھی، جن کی عقلوں کو بدعات و خرافات نے گدلا کر دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ بھیجا جس کے ہاتھوں پر جزیرہ عرب متحد ہو گیا، وہ روئے زمین کی مسافتوں کو طے کرتا رہا، جس کی تلوار قرآن مجید، بندوق اسلام اور اس کی گولیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ تھیں۔ چنانچہ ان کے سامنے زمین ہموار ہو گئی، راستے آسان ہو گئے، دل مل گئے، صفوں میں وحدت پیدا ہو گئی، اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا، ٹوٹی ہوئی بستیاں باہم مل گئیں، اسلامی ملک کے سائے تلے تعصب و حمیت اور گروہ بندی ختم ہو کر رہ گئی، محبت و الفت کا بول بالا ہوا۔ اس طرح سے لوگ اپنے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے تعلق سے مطمئن ہو گئے، داخلی جھگڑے بالکل ختم ہو گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ منہج نبوی اور آسمانی رسالت کے تسلسل کو ہی قائم کیا گیا تھا، معاشرہ عقیدہ توحید سے سیراب ہو چکا تھا، وہ صدائے ایمانی پر لبیک کہہ رہا تھا، رفتار و گفتار اور کردار میں سیرت نبوی کو حاکم تسلیم کر چکا تھا۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے اوقات اور اپنی زندگی کو اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے، ملک کی تعمیر و ترقی اور امت کے لیے عزت و شرف کے کاموں میں صرف کرنے لگے، جس سے الفت و یگانگت کا سب سے عظیم مقصد حاصل ہو گیا، اور وہ تھا ایک مضبوط معاشرے کا قیام، جس کی بنیاد نہایت مضبوط اور جس کے ستون نہایت بلند و بالا ہوں، جسے دشمنوں کے اندھا دھند حملے بھی ہلا نہ سکتے ہوں، گھات لگائے بیٹھا کوئی بھی فاسد اور بیکار شخص اس میں شگاف نہ پیدا کر سکتا ہو، اور نہ اس میں کوئی حوصلہ شکن کینہ پرور داخل ہو سکتا ہو۔ یہ وہ الفت ہے جس کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی اور جسے بلا قیمت ہیبا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قیمتی الفت آنے والی نسلوں کی گردن میں ایک امانت ہے، اس میں کمی و کوتاہی برتنا ملک اس کے مستقبل امن اور قیادت کے ساتھ کمی و کوتاہی برتنے کے مترادف ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت بھی پچھلی قوموں کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی پچھلی قوموں کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا، نخوت و غرور، دنیا کی کثرت طلب اور اس کے لیے آپسی دشمنی اور باہمی بغض و حسد، پھر ظلم و زیادتی، پھر قتل و غارت کری۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ الفت کی عظیم قدر و قیمت، غیر معمولی اہمیت اور زندگی میں اس کے گہرے اثرات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معانی اور درست فرائض میں اور اقوال و اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ باجماعت نماز باہمی تعارف، قربت، محبت اور عفو و درگزر کے ذریعے الفت کے معانی کو زندہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت میں موجود ربط و مناسبت پر ذرا غور کیجیے، جس میں ہے کہ نماز کی صفوں میں خلل الفت کے کڑے کو توڑ دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया बराबर हो जाओ और मुख्तलिफ होकर खड़े ना हो, वगरना तुम्हारे दिल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी तुम्हारे दिल अदावत, बुग़्ज़, हसद और कीना कपट की वजह से इख्तिलाफ का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा सफों की दुरुस्ती और बराबरी दिलों की उल्फत का जरिया है, और जब सफ़े सीधी ना हो तो ये चीज दिलों के इख्तिलाफ और इंशिकाक का बाइस बन जाती है। ज़कात मुआशरे की ताकत और कुव्वत को मजबूती फराहम करती है, उल्फत और मोहब्बत को परवान चढ़ाती है, ज़ाफ़ और कमजोरी दूर करके हाजत और जरूरत और भूख और प्यास पूरी करके दिलों में खुशियां भरती है। कल जिस रमजान को हमने अलविदा किया है उसमें हमने हर एक एक नकलो हरकत में उल्फत को उसकी तमाम तर जड़ों, शाखों और फलों के साथ देखा और पाया है। अगर मैं ये बात कहूँ तो झूठा नहीं होगा कि तारीख ने किसी भी निजाम और रस्मो रिवाज में रमजान की उल्फत से शानदार उल्फत कभी ना देखी होगी और ना ही कभी देख पाएगी। ये वो उल्फत है जिसके सामने हदूद और क़यूद कोई माना नहीं रखती, जिसमें मशरक़ और मगरब में फैले हुए काले गोरे और अरब और अजम सब एक ही लड़ी में परोए हुए होते हैं। हज के बारे में तो मत पूछिए, मशरक़ का आदमी हो या मगरिब का, दूर से आने वाला हो या करीब से आने वाला, वो तो सब एक ही लिबास में और एक ही प्लेटफार्म पर इन सबको जमा कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यकीनन वो अल्लाह सबसे बड़ा है और उसी के लिए तमाम तारीफात हैं। दौरे हाजिर की सरकश मादी हिर्स और हवस ने अपना मनहूस साया इस उल्फत पर डाल रखा है, जिसने ताल्लुकात में कमी और जज्बात में खुश्की पैदा कर दी है। एक मुसलमान अपने भाई से खौफजदा रहने लगा है कि कहीं वो उसे मुसीबत में डालने की ताक में न लगा हो। मुआफी और दरगुजर के असूल पर बदगुमानी, शक व शुबा और इंतकाम का जज्बा गालिब हो चुका है। एक ही मैदान में मजमूम मुकाबला आराई हो रही है और दुनियावी मसाले हो, मुनाफे और खत्म हो जाने वाले जाहो मनसब पर बड़े झगड़े हो रहे हैं। माहौल ऐसा है जैसा कि शैतान ने कहा था मैं उससे बेहतर हूँ। कुंबे और खानदान में तो उल्फत मोहब्बत का चिराग बिल्कुल टमाने लगा है और उसकी बुनियादें हिलने लगी हैं। कराबतदारों का एक दूसरे से मुंह फेरना, बल्कि उनके दरमियान इख्तिलाफात का जन्म लेना और पड़ोसियों की एक दूसरे के साथ अदावत और अजनबियत इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, चाहे जाए कि वो बाहमी हकूक पूरे करें। आपसी मोहब्बतों, उल्फत, मांद पड़ने और इख्तिलाफ और खल्फशार की फजा कायम होने की वजह से समाज का कंट्रोल और खौफ कम हो जाता है और इसके नतीजे में लुटेरे और चोर, मंशियात को फरोग देने वाले, तबाहकुन अफकार और नजरियात रखने वाले और हर तरह के फसाद और बिगाड़ पैदा करने वाले समाज में अपने लिए महफूज जगह ढूंढ लेते हैं और फिर अपने जहर को बिला खौफ व खतर वसी पैमाने पर फैला देते हैं। ईद मौसम है उल्फत और मोहब्बत के साथ अहद वफा की तजदीद का, उसकी अकदार और रिवायात की पौध लगाने का, उसकी कदर और मंजिलत को दिलों में रासी करने का, उसकी शान और अजमत को बढ़ाने का और उसके एहसासात और मानी को जिंदा करने का, ताकि हकूक की हिफाजत हो सके, कौमी रिश्ते मजबूत हों, अखलाक और किरदार को फसाद और बिगाड़ से बचाया जा सके और उम्मत का सर फख्र से बुलंद रह सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा है और तमाम तारीफें उसी के लिए। बल्कि आपसी उल्फत और मोहब्बत ईद के अहम मकासिद में से एक है। चुनाचे ईद का हकीकी दिन हुस्न जमाल, उसकी फरत और शादमानी, इत्तेहाद और इत्तिफाक, दिलों की सलामती, सलाम आम करने, सखावत और फियादी, खंदा पेशानी, साफ शफाफ दिल, नेकी और खैर से पुर जज्बात और एहसासात, हुस्न कलाम, बेहतरीन तर्ज जिंदगी, हुस्न अखलाक, नरम रवि, सख्त कलामी और तुर्श रवि से परहेज, लोगों के साथ अच्छी बात, कौलो फेल में नरमी और लचक, रहम और करम, फुकराओ मसाकीन के साथ मोहब्बत और हमदर्दी, उनके साथ अच्छा सलूक, रहमत और रहमदिली और शफकत, उनको खुश करने, यतीमों की इज्जत और तकरीम करने, बेवाओं और जिनकी गोद उजड़ चुकी है उनकी खातिर मदारात करने का नाम ईद है। मुसलमानों के दरमियान आपसी हमदर्दी और उल्फत के रिश्ते को कायम रखने के लिए जरूरी है कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात और कवायद से आगाह रहें, क्योंकि उनमें से बाज वो हैं जिनके घर जलजला की जद में आ गए हैं, बाज कहत और खुशहाली और बदतरीन हालात से दो चार हैं, या फिर उन पर ऐसे दुश्मन मुसल्लत हैं जो सुबह शाम उन्हें कर्ब और अजियत में मुब्तला किए रखते हैं। यकीनन तुम्हारे वालिदैन सबसे ज्यादा इस बात के मुस्तहिक हैं कि तुम उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करो, ताकि तुम उनके चेहरे के खदो खाल में रजामंदी की निशानियां देख सको और उनकी शक्ल सूरत में सआदतमंदी और खुशी की लकीरों को पढ़ सको। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं हिजरत करके आपके हाथों पर बैत करने आया हूँ और मैं अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़ कर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास वापस जाओ और जिस तरह तुमने उन्हें रुलाया है वैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। इसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इसी तरह ईद के मौसम में हमारे कराबतदार और रिश्तेदार हमारी मोहब्बत और उल्फत के एहसासात और जज्बात के ज्यादा हकदार हैं कि हम उनसे राबिता करें, उनकी जियारत करें और उनके साथ खुशो खुरम होकर मिलें, क्योंकि इससे ताल्लुकात मजबूत होते हैं, दिलों से कदूरत खत्म होती है और हमारे सर्द जज्बात में हिजान और नया जोश पैदा होता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की किताब में रिश्तेदार लोग एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। इसी तरह हमारी उल्फत और मोहब्बत के ज्यादा हकदार हमारे पड़ोसी भी हैं, बल्कि वही इसके ज्यादा हकदार हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील अमीन पड़ोसी के ताल्लुक से बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि वो इसको वारिस बना देंगे। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात में उस वक्त गर्मी पैदा होती है जब आप अपने भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने
सीने में छुपे हुए जज्बात को जाहिर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसको उसकी मोहब्बत के बारे में आगाह करे। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसे इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया है। तोहफे तहाइफ उल्फत और मोहब्बत में पड़ी सर्द मोहरी को खत्म करके गर्मी पैदा करते हैं, दिलों के बंद दरीचों को खोलते हैं और मोहब्बत में गहराई पैदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे कबूल भी किया करते थे और बदले में भी दिया करते थे। ये मतालिब व मानी एक मुसलमान को हर वक्त और हर लम्हा याद रहने चाहिए। ईद इन्हीं मानी को जिला बख्शती है और इनके ऊपर से फरामोशी और पुराने गर्दो गुबार को साफ कर देती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं, जिसने हमें रोजे और क़याम की तौफीक अता फरमाई। हम उससे इनकी कबूलियत की दुआ करते हैं और मैं गवाही देता हूँ कि वो अकेला माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई उसका कोई शरीक नहीं है। और दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तमाम तारीफात उसी के लिए हैं। इंसानी मुआशरा ऐसे इख्तिलाफ व खल्फशार से खाली नहीं है जो उल्फत के ढांचे को कमजोर कर दे। इसका सबब गलत फहमी या शैतानी जज्बात या दुनियावी मसाले में मुकाबला आराई होती है। ताहम उल्फत के इस ढांचे को शगाफ से बचाने के लिए इस्लाम ने बुलंद उसूलों की बुनियाद रखी है। वो है लोगों के दरमियान इस्लाह। जो लोग इसके झंडे को बुलंद करते हैं और उसकी हिफाजत की कोशिश करते हैं, उनसे खैर व भलाई और अजर अजीम का वादा किया गया है, चाहे अफराद हों या कार खैर के इदारे हों। इरशाद बारी ताला है, इनकी बहुत सी सरगोशियों में कोई खैर नहीं है सिवाय उस आदमी की सरगोशी के जो किसी सदका या भलाई या लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म दे। और जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा करेगा तो हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से निकलते थे और लोगों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करते थे। जैसा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अहले कुबा आपस में लड़ पड़े हैं, यहाँ तक कि उन्होंने आपस में एक दूसरे पर पत्थर भी चलाए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम चलते हैं ताकि उनके दरमियान सुलह सफाई करवाएं। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत की है। लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो, जिसका अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसका हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। ए अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। और अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राजी हो जा। ए अल्लाह हम सब से भी राजी हो जा। ए अल्लाह तू हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे दरमियान इस्लाह पैदा कर दे, सलामती के रास्ते की रहनुमाई कर दे। ए अल्लाह तू हमारे रोजे, क़याम, रुकू और सजदे को कबूल फरमा और बार बार हमें माह रमजान नसीब फरमा, इस हाल में कि हम सेहत और आफियत और सआदत वाली जिंदगी में हो। ए अल्लाह हमारे फौशुदगान पर रहम फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हर जगह मुसलमानों के अहवाल की इस्लाह फरमा, उनसे महंगाई, वबा, सूद, ज़िना, ज़ल्ज़लों, आज़माइशों और ज़ाहिरी व बातिनी बुरे फितनों को दूर कर दे। ए अल्लाह हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा उमूर की तौफीक अता फरमा, उनको और उनके वली अहद को हर खैर की तौफीक अता फरमा और तमाम मुसलमान हुक्मरानों को तेरी किताब पर अमल करने और तेरी शरीयत को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी खैर और भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और जहन्नम की आग से हमें बचा। अल्लाह आपकी इताअतों को कबूल फरमाए, आपकी खुशियों को दवाम बख्शे, आपकी जिंदगी को खुशगवार बना दे और सआदत और खुशबख्ती को आपका रफीक सफर और दिल की जीनत बनाए और हर साल आप खैर और आफियत में रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। हर किस्म की तारीफ उसी के लिए है।